welcome to Prep Elevate. Welcome to the decision making series to be particular. I hope you've watched the previous videos and you've got some idea. If not, please go ahead and watch them. Today we'll discuss another passage. Okay, these are all questions from that past year paper, so it's going to be really helpful for you people. What are the rules that I keep repeating for every video? First, we will try not to make any extreme decisions. Okay. Second, we'll try to be ethical in our approaches, morally upright or correct in our approaches. And third thing is, we should not make sacrificial decisions. Okay, so we'll try and not be impulsive. It is always better to create a win-win situation. That is the agenda. Okay, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या है एंड पैसेज क्या है, फिर क्वेश्चंस भी देखते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. धन, a poor but enterprising 15-year-old resided in the world's largest slum in a metropolitan city along with her widowed mother. Okay, so we're discussing about Dhan, and she's a 15-year-old and she resides in the largest slum in a metropolitan city. So obviously, like in a very poor condition financially, that means. And who is there along with her? She lives with her widowed mother. So she's lost her father, she stays with her mother. The densely packed slum housed about 1 million people, mostly in rickety one-room tenements connected by labyrinthine lanes and by lanes. अभी जो ऐसे डिस्क्रिप्शंस रहते हैं ना, हर वर्ड का मीनिंग आपको पता हो ऐसा जरूरी नहीं है और वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है. एसेंस को कैप्चर करो. सो दे आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब द लिविंग कंडीशंस ऑफ अ स्लम. तो आपने डेफिनेटली किसी ना किसी मूवी में देखा ही होगा, वहां पे स्पेस क्रंच रहता है, lots of people packed in tiny houses and very poor sewage facilities, very poor living conditions. वही डिस्क्राइब किया गया. वर्ड्स कुछ भी हो, एसेंस को कैप्चर करना है. ये क्यों इतना बैकग्राउंड सेट कर रहा है? जस्ट टू गिव अस एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड इज धन कमिंग फ्रॉम. अभी वर्ड्स अगर मैं बात करूं तो लैबिरिंथिन एक डिफिकल्ट वर्ड है. लैबिरिंथिन इज लैबिरिंथ इज समथिंग दैट इज कॉन्वोल्यूटेड. सो मेज लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, यहाँ से गलियां जा रही है, वहां से गलियां जा रही है, एब्सोल्युटली इंटरकनेक्टेड मेज, दैट इज लैबिरिंथिन. राइट, अभी देखो. Dhan's mother worked intermittently as a daily wager in a small savory factory. So घर तो चलाना है ना, तो धन की जो मदर थी, रिमेंबर धन इज अ 15-year-old, ठीक है. तो धन की जो मदर थी वो घर चलाने के लिए वो कहाँ काम करती थी? एज अ डेली वेजर. ओके, एज अ डेली वेजर एक सेवरी फैक्ट्री था. सो प्रॉब्ली कुछ ऐसे जो सेवरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे, जो लोगों को जिनकी सर्विसेज हमें ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे धन की मम्मा भी वहाँ काम करती थी. अभी देखो, for a 15-year-old, Dhan's life was hectic. Obviously, she spends 2 hours every day in fetching water for the household, packing breakfast and lunch for her mother. So Dhan की लाइफ एक नॉर्मल 15-year-old से थोड़ी डिफरेंट थी, राइट, गिवन द कंडीशंस इट कम्स फ्रॉम. तो उसे घर के काम में भी हाथ बटाना पड़ता था. तो किस तरह से? 2 hours fetching water. So हमारे लिए मे बी इट्स समथिंग दैट इज वेरी इजीली अवेलेबल टू अस. उनके लिए ऐसा नहीं था. तो 2 घंटे तो दिन के उसे वाटर फेच करने में ही लग जाते थे. ठीक है, फिर ब्रेकफास्ट पैक करना, लंच पैक करना अपनी मदर के लिए. सो बेसिकली हाउस होल्ड जो काम रहते हैं उसमें धन यूज्ड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट. इन एडिशन she had to prepare supper. So basically सारे major meals prepare करना. On her mother's insistence, Dhan also attended an evening bridge school run by an NGO. तो पूरी सुबह वो हाउस होल्ड काम में अपनी मम्मी की हेल्प करती थी, मेजर मील्स प्रिपेयर करने में, और फेचिंग वाटर एंड स्टफ. एंड देन इवनिंग में वो एक नाइट स्कूल अटेंड करती थी. ओके, इवनिंग स्कूल रन बाय एन NGO. ऑब्वियसली Dhan's mother wanted her to study, right? Education is important. Dhan's dream was to provide a comfortable life to her mother and take her family out of poverty. दो goals थे धन के. First, take the family out of poverty, so conditions, financial condition को better करना, और दूसरा अपनी mother को एक comfortable life provide करना. ठीक है. Of late, Dhan observed that the customers to a nearby tea cum savory stall, TCS बोला गया है उन्हें, tea cum savory stall, were mostly the slum dwellers who thronged the stall, मतलब crowded the stall for its low prices and lack of alternatives. So धन ने एक चीज ऑब्जर्व की कि नियर बाय एक स्टॉल है, ठीक है,
वहां पे बहुत भीड़ होती है। वहां पे क्या मिलता है, टी और कुछ सेवरी आइटम्स मिलते हैं। रिमेम्बर धन्स मदर ऑल्सो वर्कड इन अ सेवरी फैक्ट्री, सो उस फील्ड का आइडिया धन की मदर को होगा, ठीक है। तो धन ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो नियर बाय टी स्टॉल है ना, काफी भीड़ लगती है। और किन लोग की भीड़ लगती है, मोस्टली स्लम ड्वेलर्स की। क्यों वहां स्लम ड्वेलर्स की भीड़ लगती है? slum dwellers can't afford a lot of things which come very easily to a lot of people, right, given their financial constraints. So low prices रहते हैं उस स्टॉल में, और कोई ऑल्टरनेटिव स्टॉल भी नहीं है, ठीक है। वो एक ही स्टॉल है, तो ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा है और काफी भीड़ होती है वहां, ठीक है। अब देखो, further Dhan gathered that the TCS could not cater to all of its customers, and the owner still made a neat 800 profit per day. Dhan is very smart, very observant is what I would say. For a 15-year-old to look at surroundings and capture information like that is absolutely wow. तो धन ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो दुकान है ना, यहाँ पे भीड़ तो बहुत लगती है, नो डाउट, और इतनी भीड़ लगती है कि ये सारे कस्टमर्स को तो सर्व भी नहीं कर पाते। मे बी उसकी भी तो एक अपनी कैपेसिटी होगी ना टू सर्व कस्टमर्स। तो वो एक ही स्टॉल था वहां पे, इतनी भीड़ है कि वो सारे कस्टमर्स को सर्विस भी नहीं दे पा रहा है, पर भीड़ बहुत है। और जितनों को वो सर्विस दे पा रहे हैं उसमें भी पर डे 800 का प्रॉफिट हो रहा है, विच इज ग्रेट, ठीक है। 800 पर डे का प्रॉफिट फ्रॉम अ टी कम सेवरी स्टॉल इज ग्रेट, ठीक है। वो धन ने ऑब्जर्व किया। धन saw that a probable first step towards her family's economic independence could be to own her own TCS. तो धन ने देखा कि अच्छा, यहाँ पे मेरे पास मार्केट अपॉर्चुनिटी है, कोई और स्टॉल भी नहीं है, उसकी मदर को सेवरी फैक्ट्री में काम करने का भी एक्सपीरियंस है, तो शी कैन गेन द एक्सपर्टीज नीडेड। और अगर वो खुद का एक स्टॉल लगा पाए तो उसके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में बहुत हेल्प होगी, ठीक है। इजी है, इजी टू रीड पैसेज है। अभी देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग चूज द बेस्ट ऑप्शन दैट विल इंक्रीज धन्स चांसेस ऑफ रियलाइजिंग हर ड्रीम ऑफ स्टार्टिंग अ वेंचर। सो धन ने मन बनाया है कि अच्छा, मुझे अपना एक वेंचर स्टार्ट करना है टी कम सेवरी स्टॉल का। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो उसे असिस्ट करेगा कि वो उस प्लान के साथ आगे बढ़े, डिसीजन क्या लेना चाहिए उसे। अभी देखते हैं ऑप्शन। रिक्वेस्ट मदर टू फेच वाटर फॉर द हाउस होल्ड, ये तो एक एडिशनल काम है। 2 घंटे, ऑब्वियसली धन के 2 घंटे जाते हैं उस काम में, बट उसकी मदर अगर वो वाटर फेच करे, ठीक है, तो क्या उसका ये सबसे सॉलिड ऑप्शन है टू स्टार्ट अ शॉप? नो, राइट। उसका कहाँ पे हेल्प होगा एग्जैक्टली? धन को क्या असिस्टेंस चाहिए जो उसको बहुत हेल्प करे? दैट इज अ हार्ड वर्किंग गर्ल, राइट। वो ऑलरेडी काफी कुछ संभालते हुए शी इज ऑल्सो कंटिन्यूइंग हर एजुकेशन। अब भी उसके लिए बेस्ट चॉइस क्या होगा कि अगर उसे अपना वेंचर सेटअप करना है, तो अगर उसकी मदर उसको असिस्ट कर पाए ना, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज उन्हें एक्सपीरियंस है एक सेवरी फैक्ट्री में काम करने का, और वो सिमिलर वेंचर ही धन स्टार्ट करना चाहती है। तो उसके लिए बेस्ट हेल्प ये होगा कि उसकी मदर उसके साथ इन्वॉल्व हो जाए। बाकी के जो काम है वो तो अपने पेस पे करने ही पड़ेंगे। रिमेंबर, दिस इज अ नेसेसिटी, फेचिंग वाटर इज अ नेसेसिटी, एंड इफ शी सेंड्स हर मदर टू फेच वाटर, देन व्हाट अबाउट द वर्क दैट हर मदर हैज टू डू? वो भी तो होगा ना, एक कॉम्प्रोमाइज बैठ जाएगा ना वहां पे। तो दिस आई डोंट थिंक इज द बेस्ट चॉइस। अभी देखते हैं। हायर समवन एट ₹10 पर डे टू फेच वाटर फॉर द हाउस होल्ड, ये तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे प्रेजेंट सिनेरियोज में। वो किसी तरह तो अपना घर चला रहे हैं, किसी और को हायर करना ₹10 पर डे के हिसाब से आई डोंट थिंक दैट्स अ फीजिबल चॉइस फॉर देम, एटलीस्ट नाउ। रिक्वेस्ट मदर टू स्टॉप वर्किंग एंड बी अ पार्टनर इन द न्यू वेंचर, ये अच्छा होगा। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में एक कंस्ट्रेंट पड़ेगा, डेफिनेटली एक फाइनेंशियल क्रंच आएगा, बिकॉज शी वाज वर्किंग समवेयर, सो एंड हु नोज, मे बी शी डज लाइक इतना उनका अच्छा चले वो जॉब, वो जो बिजनेस वेंचर है, तो मे बी वो ऑफसेट कर पाए वो लॉसेस, वो कुछ दिन का जो उनकी मदर काम नहीं कर पा रही है। सपोज दिस लुक्स लाइक अ गुड चॉइस, अ सेंसिबल चॉइस। अब देखते हैं। स्टॉप गोइंग टू द ब्रिज स्कूल, नो, एजुकेशन स्टॉप करके क्या होगा? लॉन्ग टर्म के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन स्टॉप करना इज नॉट अ गुड चॉइस, गिवन दैट धन इज शी इज एन एंटरप्राइजिंग यंग किड, राइट। बहुत सारे ड्रीम्स है उसके, शी इज एन इंटेलिजेंट वन, तो दिस डज नॉट मेक सेंस कि पढ़ाई रोक दो। रिक्वेस्ट मदर टू पैक हर ओन ब्रेकफास्ट एंड लंच, ये जो है ना कि रिक्वेस्ट मदर टू फेच वाटर, प्रिपेयर योर ओन लंच, ये सब ना एक बहुत ही लाइक बाय द बाय ऑप्शंस है, राइट। दीज आर नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट रीजंस। अगर उसकी मदर उसके साथ पार्टनर बन जाए तो उसको अपना ड्रीम को फुलफिल करने में सबसे ज्यादा हेल्प होगी। मदर के पास एक्सपीरियंस भी है, स्किल सेट भी है, ठीक है, एंड शी इज अ ट्रस्टवर्दी कंपेनियन, डेफिनेटली। तो ये बेस्ट चॉइस है, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है। Within 2 years of establishment,
Thus, TCS is not only outcompeting its nearest rivals in the slum, but has also earned the goodwill for the quality and taste of its products. Okay, वेंचर सेटअप हो गया, 2 साल हो गए, बहुत अच्छा चल रहा है वेंचर. अब कंपटीशन तो उसने मतलब लोगों को पीछे कर ही दिया है, जो भी आसपास के राइवल्स है. एंड शी इज ऑल्सो अर्न द गुडविल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस टू रन सक्सेसफुली, कि क्वालिटी बहुत अच्छा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है. हेंस इट हैज बिकम फेमस विद इन द स्लम एज धन धनाधन ब्रांड. ओके, तो इस तरह से लोग इसे पहचानने लगे हैं बिकॉज वो धन का इंटरप्राइज है. सो इट हैज बिकम धन धनाधन ब्रांड. ओके, समथिंग दैट इज रनिंग एब्सोल्युटली इन अ वेरी गॉर्जियस फैशन. Dhan now aspires to expand the reach of her savories into the metropolitan region. Okay, अभी धन एक्सपेंशन के बारे में सोच रही है कि स्लम से बाहर जाकर मेट्रोपॉलिटन तक किस तरह मैं अपने बिजनेस को लेकर जा सकती हूँ. Dhan wishes to scale up her savory production from 100 kg to 1000 kg per day while maintaining quality. ये इंपॉर्टेंट है, स्केल अप तो करना है बट क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. रिमेंबर, शी इज नोन फॉर द क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ हर प्रोडक्ट्स. तो वही उसका सेलिंग पॉइंट है. बिना क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज के प्रोडक्शन स्केल अप करके मेट्रोपॉलिटन तक लेकर जाना है. ये एक्सपेंशन प्लान है अभी धन का. Then realizes that her establishment does not have the space for expansion on its own. Okay, so वो जिस एरिया में रहते हैं ना, वहां पे एक्सपेंशन का बहुत ज्यादा स्कोप उसे दिख नहीं रहा है. So probably बाहर जाना पड़े या कुछ ऑल्टरनेटिव सोचना पड़े, बट क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. ठीक है, और देखते हैं क्या क्वेश्चन है. Which of the following options will best help Dhan to scale up production? स्केल अप करना है बट कंस्ट्रेंट्स क्या है? लीस्ट इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, tightly control quality control, cost control, and also protect her business interest. बिजनेस इंटरेस्ट क्या होता है? प्रोटेक्ट, मेन कोर बिजनेस इंटरेस्ट क्या होता है किसी भी बिजनेसमैन का? खुद लॉस में नहीं जाना है. भले मैं अपने प्रोडक्ट पे 1 रुपया कमा रहा हूँ एक्स्ट्रा, बट मुझे कमाने हैं वो 1 रुपए. ठीक है, तो खुद को लॉस में नहीं डालना. रिमेंबर, आई स्पोक अबाउट सैक्रिफिशियल स्टांस और डिसीजंस, वो नहीं करना है. ठीक है, 3 चीजें हमें ध्यान रखना है. सबसे पहले लीस्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा इतना भी एकदम आई कांट हायर अ प्लेस विच इज स्प्रॉलिंग एंड स्टफ, वो सब मेरे लिए नहीं है. अभी लीस्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल एंड बिजनेस इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है. मतलब प्रॉफिट होना चाहिए मुझे वहां से. ठीक है, तो क्या चॉइसेस है? प्रोवाइड द सेवरी डो एंड प्रिपरेशन इंस्ट्रक्शंस टू 100 विलिंग वुमेन इन द स्लम एंड co-opt them as business partners. ओके, ये काफी सारे बड़े ब्रांड्स करते हैं जब उन्हें एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती है ना. आपको, अगर आपने केस स्टडीज में अगर आपको इंटरेस्ट होगा, आईटीसी का बिजनेस इसी तरह से कोने कोने में पहुंचा है. वो कॉमन लोगों को इन्वॉल्व करते हैं अपने बिजनेस में. ठीक है, और उनको एक अपना बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं और प्रॉफिट का कुछ शेयर ऑब्वियसली उन्हें भी प्रोवाइड करते हैं. तो बेसिकली जहां तक आप खुद हर जगह तक नहीं पहुंच सकते, तो आपके कुछ वॉलंटियर्स या आपने अमूल मिल्क का भी देखा होगा, दे हैव देयर अमूल कोऑपरेटिव्स अराउंड. ठीक है, उसी तरह आईटीसी, बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसा करती है. सो धन ने भी यही सोचा कि जो लोग इंटरेस्टेड है ना, उन्हें मैं प्रिपरेशन का तरीका और ये कैसे प्रिपेयर करना है ये बता दूं और उन्हें बिजनेस पार्टनर्स बना लूं, तो मुझे अपने एरिया से ज्यादा बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा. प्लस दे आर पीपल हु यू नो, तो आप उनके साथ काम कर सकते हो. ठीक है, तो एक ट्रस्ट फैक्टर भी रहेगा. अभी देखो और ऑप्शंस देखते हैं. फिर भी बाय एडिशनल स्पेस विद इन द स्लम एंड एस्टैब्लिश्ड ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. एडिशनल स्पेस है नहीं, हर एस्टैब्लिशमेंट डज नॉट हैव द स्पेस फॉर एक्सपेंशन ऑन इट्स ओन, तो ये तो है भी नहीं. दूसरा, इट इज वेरी कॉस्टली अपना स्पेस खुद खरीदना. आप देखो कि कोई भी जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है ना, स्पेस रेंट पे लिया जाता है. बाद में आप अपनी प्रॉफिट्स देख के डिसाइड करते हो दैट डू यू वांट टू ओन द स्पेस और नॉट. तो इनिशियली ओन करने का तो इट्स नॉट अ वेरी गुड डिसीजन. रिमेंबर, बिजनेस इंटरेस्ट, सो इट गोज अगेंस्ट दैट. एंड सेकेंडली, हैवी नहीं स्पेस, वो लिखा हुआ था, तो दिस इज नॉट गुड चॉइस. लीज स्पेस इन द मेट्रोपॉलिटन रीजन एंड एस्टैब्लिश अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. अभी आप लीज भी करोगे स्पेस, तो इट ऑल्सो कम्स विद अ कॉस्ट. प्लस मेट्रोपॉलिटन में इट इज इवन मोर कॉस्टली, राइट? तो डज नॉट लुक लाइक अ वेरी फीजिबल डिसीजन. Outsource the production along with secret recipes to a mass savory production unit outside the slum. जैसे ही आप अपने रेसिपी को आउटसोर्स कर देते हो, फिर वो आपका नहीं रह जाता. टीसीएस का वो अपना ब्रांड नहीं रह जाएगा. फिर वो धन धनाधन ब्रांड नहीं है, वो बाहर चला गया. उसको मास वे में प्रोड्यूस अगर किया जाएगा, वो आपकी ब्रांडिंग को खो देता है फिर. ठीक है,
तो आउटसोर्स नहीं कर सकते हो, सीक्रेट रेसिपीज ऐसे बाहर नहीं ला सकते, वरना फिर लोग आपको नहीं पहचानेंगे, ठीक है। आपका एक जो यूएसपी था वो रिटेन नहीं होगा फिर, ठीक है। और देखते हैं, स्टॉप केटरिंग टू द स्लम dwellers एंड स्टार्ट सर्विंग द मेट्रोपॉलिटन रीजन एक्सक्लूसिवली। नो, आपका कस्टमर बेस ही स्लम से बना है। आप एक्सपेंशन का सोच सकते हो, बट एक कस्टमर सेगमेंट जो कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, देते आया है रैदर, आप उसको टोटली आप डिसोन नहीं कर सकते फॉर अ न्यूअर कस्टमर सेगमेंट जहां का आपको रिस्पॉन्स का पता भी नहीं है, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ एक्सपेंशन का प्लान है ना, बट मेट्रोपॉलिटन कैसे उस चीज को एक्सेप्ट करेगा ये हमें अभी तक नहीं पता। तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कस्टमर बेस को तोड़ के आप एक नया कस्टमर बेस एक्वायर करने के पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। दिस इज नॉट अ वाइज बिजनेस डिसीजन। सो ये कर सकते हैं अभी इमीडिएटली, ये एक्सपैंड तो करना है, लोगों की हेल्प चाहिए रहेगी, जो विलिंग है, जिन पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, मैं वहां से बिल्ड करना शुरू करूँ, ठीक है। उनको बिजनेस पार्टनर्स बनाऊं, कुछ प्रॉफिट दूं, एंड देन स्लोली एंड स्टडीली आई एम गोइंग टू टेक इट अहेड। दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। सबसे स्टेबल चॉइस यही है। चलो अब देखते हैं, Dhan with her ingenuity is her intelligence, finds a way to scale up her production capacity on her own terms. Okay, उन्होंने रास्ता निकाल लिया, this is how I'm going to scale up. Though Dhan's TCS has become the famous Dhandhanadhan Dhan brand within the slum, it is still unknown to the outside world. Slum में तो लोग जान नहीं रहे हैं उसको of course, but बाहर की दुनिया में उतनी ज्यादा वो it's not a very known brand, so basically a very local brand it is still, ठीक है। Thus, Dhan embarks on the next challenge of creating a market for savories amongst the masses in the metropolitan region. तो अब metropolitan region में उसको अपना market establish करना है, so Dhan is working towards it. From the following, choose the best option that will help Dhan to sell her products at the lowest price to a maximum number of metropolitan customers. मतलब मुझे मैक्सिमम कस्टमर्स को रीच करना है, बट अपने खर्चे को भी मिनिमाइज करना है। ऐसा नहीं कि मैंने करोड़ों एकदम इन्वेस्ट कर दिए तुरंत से एक्सपेंशन में, इमीडिएट एक्सपेंशन के चक्कर में। दोज डिसीजंस आर ऑलवेज इम्पल्सिव एंड शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो लोएस्ट प्राइस में अगर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स को रीच करना है, तो मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो, हायर अ फ्यू सेल्स एग्जीक्यूटिव्स टू सेल प्रोडक्ट्स ऑफ धन धनाधन धन ब्रांड। इट कम्स विद अ कॉस्ट। वो सेल्स एग्जीक्यूटिव को भी तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, एंड वंस यू हायर पीपल फॉर अ सर्टेन जॉब, एक मिनिमम पे स्केल होता ही है, वो आपको पे करना पड़ेगा, एंड वी आर स्टिल अनश्योर ऑफ द रिस्पॉन्स, ठीक है। उसका है प्लान कि आई वांट टू एक्सपेंड जस्ट लाइक एनी अदर ब्रांड, बट सामने से क्या रिस्पॉन्स आएगा वो तो हमें नहीं पता ना अभी तक। तो दिस कम्स विद अ कॉस्ट, ठीक है। हमें नहीं पता व्हाट कॉस्ट, एंड इज इट वाइज इनफ टू पुट दैट काइंड ऑफ कॉस्ट into manpower for now, ठीक है। और देखते हैं, overwhelm the metropolitan residents with digital advertisements on Instagram. This is also costly. आप जब एडवर्टाइजमेंट्स रन करते हो, देयर आर सर्टेन पेड एडवर्टाइजमेंट्स एंड स्टफ, ये भी कॉस्टली है, एंड देयर नो पॉइंट ओवरवेलमिंग पीपल विद दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट। obviously social media helps you, but then it helps you only when there is a certain kind of customer base and आप expansion का देख रहे हो। टोटली एक न्यू मार्केट टैप करने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया पे रिलाई करना, लाइक द फ्री वर्जन्स ऑफ इट और व्हाटएवर, may not be a good choice, okay। and digital advertisements में अगर आप जाओगे like proper professional advertisements, then obviously उसका भी एक cost है, right। और देखते हैं, reach out to the malls and high-end retail stores in the metropolitan region through few marketing executives to sell the products. This may not be the best marketing like market capture approach, I would say, कि आप कुछ malls में जाओ, high end retail stores में जाओ, and आप अपने products को sell करने की कोशिश करो। सबसे पहले तो इसमें काफी सारे restrictions आते हैं, and there is also a cost associated। अगर आप business का एक kiosk setup करना चाहते हो कहीं पे, तो उसका भी एक cost होता है ना। We are not sure if Dhan is ready to pay that kind of cost. उसका तो condition ही था lowest price maximum reach, तो this may be breached in this condition। और देखते हैं, engage slum dwellers commuting daily to metropolitan region for work to sell the products on commission basis. This is very smart। आप कुछ एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर रहे हो। जो slum dwellers है ना, उनका रोज का जाना होगा ही,
तो रेगुलरली उनके थ्रू आप अपने कुछ प्रोडक्ट्स पुश कर रहे हो एक नए मार्केट में और उनको आप एक सर्टेन कमीशन दे रहे हो। इससे क्या होगा ना, रेगुलरली आपका प्रोडक्ट पहुंच भी रहा है आपके मार्केट में, बिकॉज रिमेंबर दे कम्यूट ऑन डेली बेसिस फॉर वर्क, ओके, दे कम्यूट डेली फॉर वर्क। तो रोज भी जाएगा, रेगुलरिटी रहेगी, लोग पहचानने लगेंगे धीरे धीरे आपके ब्रांड को, और इनमें बहुत ज्यादा पैसे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसी जगह जा रहे थे। आपके लिए स्पेसिफिकली अगर कोई काम करे वो आपसे हायर चार्ज करेगा, बट जो ऑलरेडी वहां जा रहा है वो कमीशन बेसिस पे आपसे आपके साथ जुड़ सकता है, वहां पे कॉस्ट डेफिनेटली कम आएगा, ठीक है। तो दिस लुक्स लाइक अ गुड वन। Hire a celebrity who currently endorses a diamond jewelry brand to endorse the Dhan Dhana Dhan Dhan brand। ये तो एकदम ही एक्सपेंसिव हो गया, राइट? वो डायमंड ज्वेलरी को एंडोर्स करा है, रिमेंबर उसका क्या मतलब चार्जेस होगा टू एंडोर्स योर ब्रांड। अभी तक धन धना धन धन इज नॉट रियली दैट रिच अ ब्रांड, ठीक है। धन को कंट्रोल भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो कॉस्ट कटिंग होना पड़ेगा। दिस इज नॉट फीजिबल। डी लुक्स लाइक द बेस्ट चॉइस, ठीक है, कि जो ऑलरेडी जा रहे हैं उनके थ्रू ब्रांड को इंट्रोड्यूस किया जाए एंड उसके बाद रेस्पॉन्स के हिसाब से हम आगे की सोचें और उन्हें हम कमीशन बेसिस पे हायर कर सकते हैं, ठीक है। तो लोएस्ट प्राइस मैक्सिमम रीच, ठीक है। तो दिस वाज द सेट फॉर यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू so much for tuning in, people. Keep watching and I'll see you in the next one.